Okay, so welcome to British Career Group, right? And my name is Jasdeep Kaur, and I have been working as a language instructor for past 5 years. And with BCG, I have been working for more than 2.5 years, right? And yes, we do provide online as well as offline classes, but due to this corona pandemic, we are running online. And you can search our Google page, you can search our reviews, and our students are getting good points. They are coming with flying colors in exam. So let's start what exactly IELTS is. So as you can see on my screen, IELTS is the international English language testing system. So this is the test which is conducted by the two bodies. The two bodies are ITP and British Council. So you can choose either of them. It's completely your wish. So there are 4 modules of this IELTS test, right? So IELTS listening, then reading, then writing, and then speaking. So these are the 4 modules. So as the name indicate, listening means that you have to listen to some audio. आपको कुछ ना कुछ audio tracks सुनाई देगा in the exam. You have to put on the headphones, and that track will be played for 30 minutes. Right? You have to listen to the audio for 30 minutes plus 10 minutes will be given to extra to you so that you can transfer your answers from the question paper to answer sheet. So next module is reading. Reading is of 60 minutes, means we have to attempt all the 40 questions in 60 minutes. There will be no extra time given here. Next is writing. Writing is of 60 minutes again, 1 hour. In 1 hour, you have to attempt both the tasks. There are 2 tasks in writing, and you have to attempt both the tasks in 1 hour. So this 2 hour 40 minutes exam, right? Listening, reading, writing, ये एक दिन में होगा. 2 hour 40 minutes का exam one day में, and another speaking exam will be conducted on another day. And most probably it is prior to LRW exam. पहले speaking का हो जाता है, फिर LRW का paper होता है. So speaking is of 11 to 14 minutes. It's just like an interview. You have to appear for an interview in front of the examiner, and it will be a one-to-one face-to-face speaking session, right? So ये किसी और दिन होगा. Is it clear? यहाँ तक clear है? Duration is clear to both? Okay, ma'am, but I want to know that what is the difference between IDP and British councils? Okay, IDP is that these are just two bodies, right? जैसे पेपर सेट करती है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, बट दीज आर द टू बॉडीज दैट कंडक्ट द एग्जाम. आईडीपी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और बीसी की है ब्रिटिश काउंसिल. ये दो बॉडीज हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है. दोनों का काम है एग्जाम कंडक्ट करना, राइट? और Okay, okay, एग्जाम को चेक करना, स्टूडेंट्स की इवेल्युएशन करना, और कुछ डिफरेंस नहीं है. oh, पेपर का सारा okay, राइट मटेरियल है, पैरामीटर्स है, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सेट करती है. ओके, so okay. let's move on to the second slide, and it is the listening. So what exactly listening is, that I told you earlier, that total time will be 40 minutes and questions will be 40, because there is no negative marking, so you can attempt all the questions, right? And there will be 4 sections, and each section contains 10 questions. So listening test is made to test your listening abilities, means how good you are at understanding the accent of the Britishers as well as the Australian people. So right, आपको उनका accent समझना है. It's very important. This listening test is similar in both the academic and journal IELTS. There is no difference in listening exam. तो नेक्स्ट चलते हैं. सो दिस इज द स्कोर कार्ड. स्कोर कार्ड, इफ यू विल गेट, देर आर 40 क्वेश्चंस, तो अगर 40 के 40 मतलब आपके करेक्ट हो जाते हैं, अगर आपके 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स हैं, देन यू विल गेट 9 बैंड स्कोर. इफ यू विल इफ यू आर getting 39, again it will be 9 band score. But if you will get 37 or 38, it will be 8.5, and hence it goes on decreasing, right? Okay. तो हमारा जो टारगेट है, दैट शुड बी ऑन दिस रेंज, 8, 8.5 और 9 बैंड रेंज ओनली. हायर रेंज पर ही हमने टारगेट करना है, बिकॉज ओनली देन यू कैन अचीव योर रिक्वायर्ड बैंड स्कोर. एंड लिसनिंग इज द मोस्ट easiest module, right? You can easily, both of you can easily attain good marks, right? If you will practice on the daily basis. It's all about practicing the things, right? And moreover to this, listening is the right, it can improve your overall band score, राइट? आपका जो ओवरऑल है दैट कैन बी इम्प्रूव्ड. अगर आपके लिसनिंग में अच्छे मार्क्स हैं, अच्छे स्कोर हैं, तो ओवरऑल भी अच्छा हो जाएगा. इट कैन बी 7, 7.5 बैंड्स, 8 बैंड्स तक भी आपका स्कोर जा सकता है इफ यू आर गुड एट लिसनिंग, राइट? सो Okay. नेक्स्ट इज, अब कितने सेक्शंस होंगे, कैसे क्वेश्चंस होंगे इसमें. सो IELTS लिसनिंग कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शंस, जैसे आपके सामने लिखे हुए हैं. सेक्शन 1, 2, 3, 4, हर एक में 10 10 क्वेश्चंस होंगे, मेकिंग 40 इन टोटल.
सो सेक्शन 1 में होता क्या है? सेक्शन 1 इज अ कन्वर्सेशन between two speakers about everyday situations. So दो लोग आपस में बात करेंगे, आपस में conversate करेंगे, right? And किस टॉपिक के बारे में वो बात करेंगे? Obviously they will be talking about like the journal situations, normal daily life situation. हो सकता है एक लेडी है जो कि किसी पुलिस ऑफिसर के साथ बात कर रही है and she is lodging an FIR because of the lost purse, right? So she will be talking about her lost purse. और जो पुलिस ऑफिसर है वो उससे कैसे इंटेरोगेट करेगा? वो बोलेगा कि व्हाट विल बी द व्हाट वाज द कलर ऑफ दैट पर्स, व्हाट वाज द टाइप ऑफ दैट पर्स, व्हाट वर द कंटेंट्स ऑफ दैट पर्स, वेयर इट वाज लॉस्ट. तो ऐसी ही कन्वर्सेशन होंगी. तो हमें क्या Okay. हैव टू लिसन टू देयर कन्वर्सेशन, अच्छे से उनकी बातों को सुनना है, अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चंस को समझना है और साथ के साथ आंसर लिखना है, राइट? सो इट मींस यू हैव टू बी मल्टीटास्कर. आपने क्वेश्चन को भी समझना है, स्पीकर की बातों को भी समझना है और आंसर भी लिखना है साथ के साथ क्वेश्चन पेपर पर, राइट? क्योंकि 10 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा देंगे वो टू ट्रांसफर योर आंसर्स फ्रॉम क्वेश्चन पेपर टू आंसर शीट, जहां पर आप फिर अच्छी सी हैंड राइटिंग में आंसर शीट पर आंसर ट्रांसफर करोगे, लेजिबल हैंड राइटिंग. नेक्स्ट इज सेक्शन 2. क्वेश्चन पेपर पे रफली लिख सकते हैं. हाँ, आप लिख सकते हो, राइट? देयर इज नो लाइक नेगेटिव थिंग अबाउट इट. यू कैन राइट द आंसर्स ऑन द क्वेश्चन पेपर, बट यस, आपको क्वेश्चन पेपर बाद में सबमिट करके आना पड़ेगा. यू कांट टेक इट राइट टू योर होम. नेक्स्ट इज कवर. आर यू गेटिंग द थिंग्स? Yes, yes, ma'am. Yes. Okay, so section 2 क्या है? Section 2 is a monologue. Monologue means that there will be a single person who will be talking about everyday situations. So again आपने उसकी बातों को सुनना है, understand करना है और finally answer लिखना है. But here the type of question will be different. Like section 1 में हो सकता है जैसे कोई हम address form fill करते हैं, अपना name लिखते हैं, फिर post code लिखते हैं, address लिखते हैं, telephone number, contact number. So the questions can be in that form. But here in section 2, the questions can be in the form of multiple choice question, right? It can be like sentence completion either, or it can be multiple choice. हो सकता है एक question की statement given है, उसकी 4 options हैं, आपको correct option find out करनी है. You have to find out the suitable option. तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अलग अलग है. देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटेजीज दैट वी हैव टू फॉलो. तो वो स्ट्रेटेजीज क्या है वो अभी मैं आपको बताऊंगी वन बाय वन. सो सेक्शन 3 इज अ कन्वर्सेशन. यहाँ पर 2, 3, 4 लोग हो सकते हैं इस कन्वर्सेशन में, बिकॉज लाइक दिस इज द लिटिल बट डिफिकल्ट सेक्शन एज कम्पेयर टू सेक्शन 1 and 2 and 4, क्योंकि यहाँ पर एक तो है नंबर ऑफ पीपल आर मोर, लोग ज्यादा हो गए, राइट? यू हैव टू लिसन, यू हैव टू रिकॉग्नाइज वॉइसेस. आपको ज्यादा लोगों की आवाजों को पहचानना है. एंड वन मोर थिंग इज दैट हियर द टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी डिफरेंट. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, इट कैन बी डायग्राम टाइप ऑफ क्वेश्चन, as well as that you have to be very familiar with the advanced vocabulary words that they will be using in their conversation. हो सकता है वो डिफिकल्ट vocabulary words यूज करें जो हमने कभी अपनी लाइफ में या यूज नहीं किए इंग्लिश लैंग्वेज में. So that's why this section becomes difficult. But yes, आपके लिए easy हो जाए, so we will provide you the list of vocabulary words, the list of synonym words that you can implement in your speakings and you can implement in your writings as well. Right. So next is monologue. Monologue, again, there will be a single person जो बात करेंगे on a particular academic subject. हो सकता है यूनिवर्सिटी का कोई लेक्चरर है, प्रोफेसर है जो कि स्पीच देंगे किसी टॉपिक पर, सब्जेक्ट पर, जैसे ज्योग्राफी, फिजिक्स, हिस्ट्री. So again, you just have to listen to the conversation and then find out the answer. So let's move to the type of question. अब listening में there are different types of questions that are asked. हो सकता है multiple choice question हो, sentence को complete करने वाला या fill in the blanks आप बोल सकते हो, ऐसे question हो सकता है short answer question हो like this. So अगर ऐसा question आ जाए तो it's very important, like first of all you have to read the instructions. यहाँ पर instructions हैं no more than 3 words and or a number. तो इसका क्या मतलब है? Kanwar, can you tell me? And we cannot use more than 3 words for answer, or we Yes. can use the number. Yes, you can't write more than 3 words per answer. Means your answer should be in 3 words, right? It should not exceed Yes, the word limit. या फिर आपको यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है and or a number. आप आंसर नंबर दे सकते हो. नंबर मतलब मैथमेटिकल न्यूमरल, कोई मैथमेटिकल इंटीजर जैसे 12, 100, 14, 15,
ऐसे भी आंसर हो सकता है, या फिर आप कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो, राइट. यू कैन यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स एंड अ नंबर, राइट, कि आप वर्ड्स में भी या नंबर को मिक्स करके भी आंसर दे सकते हो, कॉम्बिनेशन कर सकते हो. बट हम जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे उसमें तो फिर वर्ड लिमिट 3 की होगी ना, नंबर को ऐड करके भी. हाँ जी, तब भी 3 ही होने चाहिए. जैसे 25 जॉब्स, 25 इज अ नंबर, जॉब्स इज अ, तो अगेन आपका आंसर ये 2 वर्ड्स में है, ठीक है. तो यू कैन राइट अप टू 3 वर्ड्स. अगर आपका 3 वर्ड से ज्यादा हो गया आंसर, इट विल नॉट, like it will be incorrected by the computer, क्योंकि listening and reading answers you have to attempt on the OMR answer sheet and it will be evaluated by computer, right. So next is question को पढ़ना है हमने. Listening, although listening will be played once only, listening एक ही बार play होगी, you will not get a chance to listen to it for the second time. So it's very important to always listen to the questions carefully, राइट. जब भी क्वेश्चंस आई मीन्स जब भी वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं स्पीकर, आपने उनकी बातों को अच्छे से समझना है और आपको उनके साथ साथ ही चलना है. यू हैव टू कीप टू द पेस. अगर वो 11th क्वेश्चन के बारे में बोल रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, तो हमने फटाफट 11th क्वेश्चन पर चले जाना है. अगर वो नेक्स्ट टर्न हो गए, राइट, दे आर टॉकिंग अबाउट द 12th क्वेश्चंस कंटेंट, सो वी हैव टू शिफ्ट. ऑल्दो राइट कि हमने 11th किया है या नहीं किया है, बट स्टिल वी हैव टू कीप टू द पेस. अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट 2 फैक्टर्स कैन मेक सोशल कॉन्टैक्ट इन अ फॉरेन कंट्री डिफिकल्ट. सो कौन से ऐसे 2 फैक्टर्स हैं जो सोशल कॉन्टैक्ट को मुश्किल बना सकते हैं किसी फॉरेन कंट्री में. तो सबसे पहले तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन स्टेटमेंट प्रॉपरली. सोशल कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है. देन यू हैव टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन. जैसे यहाँ पर कीवर्ड्स हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं द वर्ड्स दैट कैन हेल्प यू टू फाइंड आउट द आंसर or with the help of which you can easily locate your answer. जैसे यहाँ पर है social contact, foreign country, difficult. आप ऐसे words को question में right इनको underline करोगे. अब can you tell me the what are the synonym words? कंवर, आप बता सकते हो synonyms क्या होते हैं? Some of the words having same meaning. Yes, the word same meaning. Right. So, for example, instead of social contact, the speaker may use the words like interaction, communication, face-to-face, verbal communication. And instead of foreign country, the speaker may use the words like abroad, overseas, Western country. And instead of difficult, the speaker may use challenging, demanding. तो ऐसे words वो use कर सकते हैं. तो अगर हमें इनके synonyms पता होंगे तभी हम आंसर ढूंढ सकते हैं, because the speaker will never ever use the same words which are in the question. जो question में है वो नहीं use करेंगे, वो उनके synonyms use करेंगे, right? So it's very important to pay attention to the synonyms. तो जैसे ही आपने synonyms word जो है right वो find out कर लिए, it means next will be your answer, right? You have to find out the answers after that. So जैसे यहाँ पर फिर आप कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आप लाइक इंटरप्रेट कर सकते हो, उनको अज्यूम कर सकते हो, सोच सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि क्या होगा इसका आंसर. जैसे कि इफ यू पीपल वांट टू गो अब्रॉड, व्हाट इज द मेजर डिफिकल्टी दैट यू कैन फेस इफ यू वांट टू इंटरेक्ट विद द नेटिव पीपल. आपको क्या दिक्कत आ सकती है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपने किसी फॉरेन कंट्री में जाकर वहाँ के लोगों के साथ बात करनी है, कम्युनिकेशन करनी है, तो क्या हो सकता है. Kanwar, can you tell? Unmute your mic. Language barrier, man, first of all. Language barrier. Wonderful. Good. Arpit, what other factor can be there? They can't use the words which are common in our country, like say they mostly use the vocab words of vocab Okay, words, that's good. हाँ, तो वो difficult words which are common in their country. Right, वो भी language का ही part है. Good answer. So yes, language can be the major difficulty. अगर आपको उनकी language या उनको आपकी language नहीं समझ आ रही, so it will be quite difficult to interact with them. So यहाँ पर भी जो answer था, first answer it was language. And second factor which was said by that speaker, it was customs. Customs means the values, the rituals, रीति रिवाज. अगर हमें उनके थोड़े बहुत rituals pata hai, so it will be easy for us to communicate, to know more about them, right?
सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, एक तो आपने आंसर्स जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिखने, यू हैव टू राइट द आंसर्स इन ब्लॉक लेटर्स इन कैपिटल लेटर्स ऑन द आंसर शीट बिकॉज इट विल बी इवैल्यूएटेड बाय कंप्यूटर एंड इट शुड बी विद इन द बॉक्स लिमिट. अगर आंसर आपका बॉक्स के थोड़ा सा बाहर चला गया, आंसर शीट पर बॉक्सेस होंगे 1 to 40 बॉक्सेस, उसी में आपने आंसर लिखना है कैपिटल लेटर्स में. अगर बॉक्स के बाहर चला गया, अगेन इट विल नॉट बी इवैल्यूएटेड बाय कंप्यूटर, हो सकता है वो आपका आंसर रॉन्ग कर दे. One more thing, another important thing is that you have to take care of the singulars and plurals. यहाँ पर अगर स्पीकर ने वर्ड बोला है language, so it means you can't write languages, right? If you will write s after language, it will be again incorrect answer. Second, customs. Instead of customs, अगर आप गलती से लिख देते हो custom, that will change the meaning of the word, right? And right, again it will be incorrect answer. So it's always important to pay attention singulars and plurals in listening is really very important. आंसर सिंगुलर है या प्लूरल है, राइट? प्लस आप अब इसका कैसे पता लगा सकते हो, राइट? देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु फेस डिफिकल्टी इन स्पेलिंग्स आल्सो, right? They do not know how to spell some words. So for this reason, we have created a PDF or document that contains 1200 words. 1200 words that are most commonly used in the listening answers. Listening के answers में आप वो words apply कर सकते हो. Most commonly used है वो words, right? So we will provide you. आपके spelling भी mistake नहीं होगी. आपको पता चल जाएगा कि singulars होते हैं ऐसे words या plurals होते हैं, कैसे answer लिखना है. So it will really help you. And moreover, so this was only one type of question that I have discussed. I have taught about the strategy of this short answer question. But yes, there are other strategies of multiple choice question, plan. अगर कोई diagram type of question आ जाए listening में, उसको कैसे solve करना है, what are the things that you have to take care of, prepositions का कैसे ध्यान रखना है, अगर आंसर राइट सेंटेंस को कंप्लीट करने वाला है तो वहां पर किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसी स्ट्रेटेजीज यूज करनी है, दैट विल बी डिस्कस्ड विद यू इन द ओरिएंटेशन क्लास, राइट? सो इज देयर एनी डाउट इन दिस मॉड्यूल? No, ma'am. So next is I'm proceeding to the reading module. Reading is just like a comprehension that you must have done in the previous classes. So reading passages are usually taken from the articles, research papers, journals. That's why students find this module to be very difficult. उनको ज़्यादातर reading में problem आती है, mostly students को, right? But I'll tell you the simple strategies. तो time यहाँ पर reading में भी 60 minutes है, right? You have to attempt 40 questions in 60 minutes. It means per question you have 1.5 minutes only, right? You can't spend more than 1 minute or 1.5 minutes on a single question. So it's very important to manage time in reading. Time management is really very important here. So I'll tell you how you have to do this. So this is again the scorecard, right? So if you will get 39 or 40 out of 40, your math score will be 9. If it is 37 or 38, it will be 8.5, and hence it goes on decreasing. Again, target हमारा high range पर ही होना चाहिए. So next, कैसे questions होते हैं, कैसे passages होते हैं reading में. So like this is the passage which is on worms. And the questions are, there are two questions which are in the form of sentence completion. Sentence को complete करना, मतलब fill in the blanks type of question, right? तो सबसे पहले there are two techniques that we must use in reading. वो दो techniques होती हैं, skimming and scanning. So Arpit, can you tell the meaning of the word skimming? क्या मैम? Skimming का मतलब पता है कुछ, क्या होता है skimming? नो मैम. जैसे स्किम का मतलब होता है कुछ मेन, जैसे दूध में से मलाई निकालते हैं, दो बाकी बच जाता है दूध, स्किम्ड, Yes, yes. राइट? तो स्किम्ड मिल्क का मतलब कि उसमें से क्रीम निकाल ली. यहाँ पर भी है स्किम का मतलब दैट यू हैव टू फोकस ऑन द मेन एरियाज, मेन part of the passage. So what will be the main part? Main areas are like some words are put in inverted commas, some words are highlighted by the author, right? जिसने ये आर्टिकल लिखा है उसने कुछ वर्ड्स को इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, कुछ को हाईलाइट किया है, कुछ को ब्रैकेट्स में लिखा है, कुछ नाउन्स हैं, या कईयों का मीनिंग ग्लॉसरी भी बताई होती है, राइट? सो व्हाई ऑथर्स डू लाइक दिस?
सो ऑथर ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उनमें से आंसर आपको मिल सकता है, ऐसे शब्दों में से, ऐसे नाउन्स में से यू कैन इजिली फाइंड आउट द आंसर। सो आपको क्या करना है, द फर्स्ट टेक्निक इज स्किमिंग। आपने पैसेज पढ़ना है फटाफट से, इसको बोलते हैं स्पीड रीड करना, स्पीड रीडिंग, राइट, फटाफट से पढ़ना, राइट, मेन एरियाज पर फोकस करना। अगर कोई नेम ऑफ अ पर्सन है, नेम ऑफ अ सिटी गिवन है, कोई कंट्री नेम, कोई ईयर गिवन है 1962, 1998, तो इसमें ऐसा हुआ था, तो आपको वो फटाफट से अंडरलाइन करना है। सम वर्ड्स अगर कईयों का मीनिंग गिवन होता है, ग्लॉसरी बताई होती है, राइट, सो इट मीन्स लाइक कुछ साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी भी यूज कर सकता है ऑथर, लाइक ओएसोफेगस। ओएसोफेगस का सबको मतलब नहीं पता होता, ओएसोफेगस होता है थ्रॉट, राइट, गला हमारा। तो अगर कुछ ऐसा ऐसा राइटर ने बताया है, कई वर्ड्स की ग्लॉसरी बताई है, तो इट मीन्स यू कैन फाइंड आउट द आंसर डायरेक्टली फ्रॉम दोज वर्ड्स। ये होती है स्किमिंग। स्कैनिंग का मतलब है दैट यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स टू फाइंड आउट द आंसर। आपको पूरा पैराग्राफ, पूरा पैसेज अच्छे से पढ़ना पड़ेगा अगर आपको आंसर ढूंढना है तो। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, नाउ साइंटिस्ट डाउट वेदर इट इज डैश, यू नीड टू फिल अ ब्लैंक टू ट्रीट लार्ज ग्रुप्स ऑफ पॉसिबली इन्फेक्टेड पीपल। कि आजकल साइंटिस्ट जो है, आजकल वो क्या कर रहे हैं, वो इस चिंता में है, वो इस शक में है, क्या ये क्या होगा, राइट, वेदर का मतलब क्या ये क्या होगा अगर वो इलाज करेंगे। किन का इलाज करेंगे, उन लोगों का, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल विच इज इन्फेक्टेड, द पीपल, द ग्रुप ऑफ पीपल विच इज इन्फेक्टेड और विच आर इन्फेक्टेड, अगर उनका वो इलाज करेंगे तो वो क्या होगा। इट मीन्स यहाँ पर कोई ऐसा आंसर आएगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, फायदेमंद होगा, नुकसानदायक होगा, बेनिफिशियल, एडवांटेजियस, कुछ ऐसा ही वर्ड फिल करना होगा आपको, राइट। So again, what you can do is you can pay attention to the keywords of this question. Keywords है scientist, then large group is the keyword, then infected people is the keyword. आप इन keywords को क्या करोगे? You have to find out their synonyms in the passage. अब इनके synonyms आपने passage में देखने हैं। So जैसे scientist को हम क्या बोल सकते हैं? We can call them as researchers, experimenters, developers, boffins, right? और यहाँ पर जो terminology given है that is experts. So यहाँ पर लिखा हुआ है about a quarter of the world's population could have worms living in their guts. For many years, experts have recommended. यहाँ से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है, वहां पर लिखा हुआ था नाउ, यहाँ पर है फॉर मेनी ईयर्स। साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स हैव रिकमेंडेड, रिकमेंडेड का मतलब होता है सुझाव दे चुके हैं, राइट, सजेस्ट कर चुके हैं। दे, दिस इज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सो दे हैव रिकमेंडेड, रिकमेंडेड का मतलब है सजेस्ट कर देना। क्या सजेशन कर चुके हैं वो, दैट द ट्रीटिंग लार्ज ग्रुप्स एट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, कि उन लोगों का ट्रीटमेंट होना चाहिए, राइट, जिनको इन्फेक्शन है। बट इज दिस मास अप्रोच वर्थवाइल, बट दे आर इन डाउट। क्या डाउट है उनका, ये वाला डाउट है क्वेश्चन मार्क वाला, इज दिस मास अप्रोच वर्थवाइल, कि ये जो मास का मतलब क्या है, ह्यूज ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग अगर इकट्ठे होते हैं कहीं पर तो उनका, उसको हम बोलते हैं मास। देयर इज अ ह्यूज मास इन द मार्केट, right? So mass, is this mass approach worthwhile? So can you find out, any one of you, what will be the answer? You have to choose from this passage, और one word answer हो सकता है, two word answer भी हो सकता है। Ma'am, worthwhile. Yes, wonderful. The answer is worthwhile, क्योंकि worthwhile का मतलब होता है beneficial, फायदेमंद। तो हमने, what we have to do is we have to choose the exact word from the passage and we have to fill in the blank, right? So second type of question is like similar. The experts call the debate. Experts ने debate का नाम क्या रखा? Either you can look for the word debate in the passage, wherever it will be, the answer will be nearby to it. कहाँ पर लिखा हुआ है debate? यहाँ पर third sentence में. Worm wars. Yes, the answer is worm wars. Correct. So या तो आप वहाँ से word pick करके आंसर चूज कर सकते हो, या फिर you can pay attention to the words which are highlighted by the author. Skimming technique से आंसर ढूंढ सकते हो, right? So these were the two questions. And एक और बात, ये जो sentence completion answers होते हैं, you can find them in a sequence. Sequence में ही आपको मिल जाएगा, जैसे first का आंसर first paragraph में, most probably ऐसे ही होता है, second का आंसर next second paragraph में, third का next वाले paragraph में, right?
So this was the answer, worthwhile, then warm words. So again, this was the one strategy that I have discussed about reading type of question. But yes, multiple choice question को कैसे solve करना है, true false not given को कैसे आपने find out करना है, that will be discussed in detail in the class, because mostly students को true false में भी problem आती है. Their answers always swing in between false and not given. तो उनके doubt, right? उनका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता कि फॉल्स है तो क्यों लिखेंगे फॉल्स, ट्रू नॉट गिवन है तो क्यों नहीं, राइट, क्यों लिखेंगे नॉट गिवन. सो आई विल टेल यू, लाइक फॉर द फर्स्ट 2-3 days वी विल प्रोवाइड यू द ओरिएंटेशन क्लासेस. उस ओरिएंटेशन क्लास में क्या होगा कि हम एक एक मॉड्यूल को डेली बेसिस पर आपको करवाएंगे, ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कौन सी टेक्निक्स यूज करनी है, कैसे आंसर ढूंढना है, क्या आप टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हो. सो दैट विल बी डिस्कस्ड इन ओरिएंटेशन, राइट. मैम कई बार दोनों पैराग्राफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਦਲਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਆ ਤਾਂ. No, ਉਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਾਲੇ क्वेश्चंस होंगे, that will be different I questions. think that are list of headings. हाँ, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, हाँ, मैचिंग पैराग्राफ हेडिंग होती है, हाँ जी, हाँ जी, वो अलग क्वेश्चन है. ट्रू फॉल्स इज डिफरेंट. ट्रू का मतलब है दैट यू विल राइट ट्रू ओनली व्हेन द इंफॉर्मेशन व्हिच इज इन द पैसेज इज एग्जैक्टली सेम द इंफॉर्मेशन व्हिच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. बिल्कुल वर्ड टू वर्ड अगर सेम है तब आप लिखोगे ट्रू. फॉल्स आप तब लिखोगे जब आपको पैसेज में कुछ और बताया है, क्वेश्चन में कुछ और पूछ रहा है, राइट, कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन है, ऑपोजिट चीज है, देन यू विल राइट फॉल्स. नॉट गिवन हम तब लिखते हैं व्हेन द इंफॉर्मेशन इज नॉट एट ऑल रेफर टू ऑल इन द पैसेज. क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है वो पैसेज में बताया ही नहीं, हम आंसर ढूंढ ही नहीं सकते उसका, तो वी विल मार्क इट नॉट गिवन. मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स भी बताऊंगी कि विदाउट रीडिंग द पैसेज यू कैन मार्क द आंसर. ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में आप पैसेज, एक दो टिप्स हमारे पास ऐसी हैं कि पैसेज बिना पढ़े ही आप आंसर लिख सकते हो इसका कि ट्रू होगा कि, क्योंकि वर्ड्स क्वेश्चन में ऐसे वर्ड्स होते हैं कुछ जिनको आप ढूंढ सकते हो, जिनसे आप आंसर लिख सकते हो डायरेक्टली, राइट. सो नेक्स्ट इज राइटिंग. राइटिंग इज ऑफ 60 minutes long. You have to attempt 2 tasks of writing. It's a subjective paper, task 1 and task 2. टास्क 1 को हम बोलते हैं रिपोर्ट राइटिंग, टास्क 2 को बोलते हैं एसे राइटिंग, ठीक है. So candidates are required to write at least 150 words. It's very important to fulfill this criteria. कम से कम 150 words लिखने हैं रिपोर्ट राइटिंग के लिए, और कम से कम 250 words you have to write for essay writing. Clear? If you will be writing less than. Excuse me, ma'am. Yes. वो रेटिंग में भी कैपिटल लेटर से लिखना होता है. Yes, क्योंकि वो भी आपको कंप्यूटर ने ही इवैल्यूएट करके देनी है. आपका लिसनिंग और रीडिंग का आंसर जो है वो OMR आंसर शीट पर होगा, राइट. तो वो आपने के भी आंसर्स कैपिटल, ऑल द लेटर्स ऑफ ईच एंड एवरी आंसर, एंड रीडिंग के भी सारे आंसर्स कैपिटल में होने चाहिए. क्योंकि अगर आप स्टाइलिश वे में या इनलेजिबल वे में लिखोगे, हो सकता है कंप्यूटर को वो ना समझ आए आपने क्या लिखा है. सो इट विल नॉट बी इवैल्यूएटेड बाय कंप्यूटर, या वो इनकरेक्ट कर सकता है. सो इट्स ऑलवेज द स्टूडेंट्स टू राइट इन ब्लॉक लेटर्स. सो इसकी भी वर्ड लिमिट फॉलो करनी बहुत जरूरी है. 250 वर्ड्स कम से कम लिखने हैं ऐसे के लिए. अगर आप इनसे कम लिखते हो तो डेफिनेटली देयर विल बी अ बैंड डिडक्शन, राइट. सो दे हैव प्रोवाइडेड अस द रेंज दैट यू कैन राइट इन बिटवीन 150 to 180, राइट, फॉर टास्क 1, 250 to 280 वर्ड्स फॉर टास्क 2. तो इस रेंज में ही लिखना है. अगर आप ज्यादा लिखोगे तब भी क्या होगा, एक तो टाइम आपका ज्यादा लगेगा, राइट, प्लस आपका मिस्टेक्स, चांसेस ऑफ मिस्टेक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टेक्स विल इंक्रीज. So it's always recommended to write in between the range. कम से कम 150 और 150 to 180 के बीच में ही लिखो. इससे ज़्यादा ना इससे कम आपने नहीं लिखना. And one important thing is both the responses should be written in a formal style. इसका क्या मतलब है, कोई बता सकते हैं मुझे, कंवर? What does this mean? Formal. No ma'am, I can't remember. Formal. नहीं, फॉर्मल स्टाइल का मतलब है दैट यू कांट यूज एनी इनफॉर्मल वर्ड. इनफॉर्मल वर्ड या कैजुअल वर्ड जैसे कि मॉम, डैड,
ब्रो, सिस, हम ऐसे और शॉर्ट फॉर्म्स नहीं शॉर्ट यूज होंगे आई फॉर्म्स, थिंक। यस, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज कर सकते आप, कॉन्ट्रैक्शंस नहीं यूज कर सकते आप, स्लैंग लैंग्वेज, आई वांना गो देयर, आई वांना डू दिस, हम ऐसे जब अपने बात करते हैं अपने फ्रेंड के साथ तब यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर नहीं, कोई इंटरनेट लैंग्वेज नहीं आपने यहाँ पर यूज करनी, बिकॉज दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, आई वांना, आई गोना, राइट, या यस, ऐसे मतलब या वगैरह ऐसे वर्ड्स आपने नहीं यूज करने, सो दिस इज नॉट द फॉर्मल स्टाइल. So next is what exactly task one is. Task one में आपके पास like, एक्सक्यूज मी मैम, yes, मैम ਫਾਰਮਲ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖਣਾ? हाँ, ਫਾਰਮਲ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, Okay. ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ Okay. ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਕਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹਾਂਜੀ। that way, ਠੀਕ ਹੈ, ओके ओके ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ है, टास्क वन भी उदा ही लिखना है. So task one क्या होता है? Task one is a like there are different types of task one. Task one के रिपोर्ट राइटिंग के 8 टाइप्स हैं, 8-9, जो हम आपको वन बाय वन बताएंगे. जैसे कि आपके सामने कोई ग्राफ हो सकता है, टेबल हो सकता है, चार्ट हो सकता है, डायग्राम, मैप, पिक्चर, इलस्ट्रेशन, प्रोसेस चार्ट, फ्लो चार्ट, सो इट कैन बी इन एनी फॉर्म. आपको क्या करना है, आपको वो इंफॉर्मेशन जो आपके सामने दी हुई है उसकी समरी बनाकर प्रेजेंट करनी है. यू हैव टू मेक अ समरी, राइट, यू हैव टू डिस्क्राइब इट इन योर ओन वर्ड्स. तो जैसे कोई मशीन कैसे काम करती है, सीमेंट मेकिंग प्रोसेस, सीमेंट कैसे बनता है, कंक्रीट कैसे बनता है, लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्कवर्म, तो ऐसे करके आपके सामने कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होगी, राइट, कोई लाइन ग्राफ, बार ग्राफ की फॉर्म में हो सकती है. तो आपको कम से कम 150 वर्ड्स लिखने एंड 20 मिनट्स में, क्योंकि रेस्ट ऑफ द 40 मिनट्स वी विल बी यूजिंग फॉर ऐसे. क्लियर? ऐसे की ज्यादा वेटेज है, उसकी वर्ड लेंथ भी ज्यादा है, उसकी 250 वर्ड्स लिखने एंड इसके 150 वर्ड्स है, तो इसको हम 20 मिनट्स में कवर करेंगे. सो ये टास्क वन का फॉर्मेट क्या है, लाइक देयर यू हैव टू मेक 4 पैराग्राफ्स, राइट. फर्स्ट पैराग्राफ इज इंट्रोडक्शन, second is overview, third and fourth paragraphs are known as body paragraphs in which you have to discuss the values. तो अब what you will write in introduction, overview क्या होता है, let me tell you in this slide. So as you can see on this screen, so this is a slide which contains one graph, right. ये हमारे सामने ऐसे क्वेश्चन पेपर पर आपको एक ग्राफ दिखाई देगा और उसकी एक क्वेश्चन होगा, राइट, यू हैव टू राइट आंसर इन दिस वे. तो सबसे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन टू द ग्राफ इन द इनिशियल मिनट्स. तो ये ऑब्जर्व करना है हमने ग्राफ, ये हमें क्या बता रहा है. ऑन द एक्स एक्सिस ऑफ दिस ग्राफ, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है. एक्स एक्सिस पर है टाइम ऑफ डे, एक दिन के सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, रात के 10 बजे तक का डेटा है. और वाई एक्सिस पर है नंबर ऑफ पीपल इन 1000. तो the graph below shows the weekday volume of passenger activity on the Toronto metro system for July 2007. Summarize the information by selecting and reporting the main features, make comparisons where relevant. तो ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है, एक हफ्ते में, एक वीकडे में, वीकडेज में कितने पैसेंजर पहुंचे थे टोरंटो के मेट्रो स्टेशन पर इन द मंथ ऑफ जुलाई इन द ईयर 2007. बट अगर जो हमारे पास वीक डेज हैं वो मंडे टू फ्राइडे है, राइट, इट्स नॉट अबाउट सैटरडे संडे. सैटरडे संडे वीकेंड का डेटा नहीं है हमारे पास, मंडे टू फ्राइडे तक का है, तो इसका मतलब 5 वीक डेज है, राइट. तो हाउ यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस ग्राफ, ये जो सैंपल आंसर के नीचे गिवन है. तो इंट्रोडक्शन में आपके इस ग्राफ में 6 फैक्टर्स होने चाहिए. कौन से हैं वो 6 फैक्टर्स, सबसे पहले तो आप बताओगे कौन सा ग्राफ है ये, राइट, क्योंकि ये लाइन में की फॉर्म में है तो इसको हम लाइन ग्राफ बोल सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ लीनियर रिप्रेजेंटेशन. तो सबसे पहले तो आप ये बताओगे द गिवन और द रेंडर्ड लीनियर रिप्रेजेंटेशन और द लाइन ग्राफ, द गिवन लाइन ग्राफ ऐसे भी लिख सकते हो, द रेंडर्ड लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी लिख सकते हो. नेक्स्ट यू हैव टू पैराफ्रेज द क्वेश्चन स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन में है उसी को आपने रिपीट करके लिखना है, बट बाय यूजिंग द सिनोनिम वर्ड्स. यू कांट यूज द सेम वर्ड्स व्हिच आर इन द क्वेश्चन. अगर आपने वही वर्ड्स लिख दिए तो एग्जामिनर आपकी इंग्लिश को कैसे इवैल्यूएट करेगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो प्रोफिशिएंसी टू एग्जामिनर बाय यूजिंग सिनोनिम वर्ड्स. तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ शोज, शोज का मतलब होता है दिखाना, तो ये ग्राफ हमें क्या रिप्रेजेंट्स कर रहा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रिप्रेजेंट्स, इलस्ट्रेट्स, डिपिक्ट्स, रिवील्स, देयर आर मेनी अदर वर्ड्स दैट वी विल टेल यू.
सो इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम आप लिख सकते हो स्टैटिस्टिक्स, इंस्टेड ऑफ पैसेंजर यू कैन राइट ट्रैवलर. ड्यूरिंग 5 weekdays then we have to write the number of categories. कितने कैटेगरीज का डेटा है आपके पास? आपके पास 5 दिन का डेटा है, तो आपने लिख दिया ड्यूरिंग 5 weekdays इन जुलाई, जुलाई का महीना है, राइट, इन जुलाई 2007 एट टोरंटो मेट्रो सिस्टम. तो अगर कोई कंट्री नेम है, सिटी नेम है, राइट, कोई मंथ ईयर गिवन है, आपने वो भी लिखना है. लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इन इंट्रोडक्शन इज दैट यू हैव टू राइट कैलिब्रेशन यूनिट्स. ये जो यूनिट्स दे रखे हैं आपके पास वो किस फॉर्म में है? थाउजेंड्स में. तो आप लिखोगे द मेजरमेंट हैज बीन कैरिड आउट इन द थाउजेंड्स. जैसे यूनिट्स दिए हैं हम वैसे ही लिखेंगे. अगर परसेंटेज दी है तो हम लिखेंगे द मेजरमेंट हैज बीन कैरिड आउट इन परसेंटेज. अगर मिलियंस में है, बिलियंस में है, तो आप वैसे लिखोगे. यू कांट चेंज इट. आप अपनी तरफ से, जैसे 100,000 का मतलब क्या हुआ? 1 लाख. 1 लाख लोग आए थे सुबह 6 बजे, बट हम लैक्स नहीं लिख सकते ना. सो वट एवर द इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस, वी विल जस्ट प्रेजेंट इट, वी विल जस्ट मेक अ समरी ऑफ इट. सो इन दिस समटाइम्स ये गिवन नहीं होता मेजरमेंट. कई बार गिवन नहीं होती मेजरमेंट मैप उसके अंदर. नहीं नहीं नहीं, मेजरमेंट, हाँ, जैसे कि अगर लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है, पाई चार्ट है या टेबुलर इंफॉर्मेशन है, तब तो ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक्स गिवन होगा, मेजरमेंट होगी क्योंकि आपने उसमें वैल्यूज एक्सप्लेन करनी होती हैं. बट कई बार जैसे मैप है, डायग्राम है, राइट, प्रोसेस चार्ट है, फ्लो चार्ट है, उसमें नहीं होती, तो उसका इंट्रोडक्शन फिर हम किसी और वे में लिखेंगे, राइट. नहीं मतलब ये नहीं लिखा होता ना कि थाउजेंड्स में है या क्या चीज है, ग्राम्स में है. ऐसे तो डेफिनेटली होगा. ऐसे तो होगा ही होगा डेफिनेटली. मिलियंस, परसेंटेज, थाउजेंड, ये तो बताया ही होगा कि अगर लोगों का नंबर है तो नंबर्स में है, राइट, नंबर ऑफ पीपल. अगर कुछ नहीं लिखा तो ऑब्वियसली हमें नंबर पता लग रहा है ना, तो हम लिख सकते हैं मेजरमेंट हैज बीन कैरिड आउट इन नंबर्स, राइट. ओके, so next is overview. आपको फिर you have to leave one line blank, then you have to write an overview. So overview में आपको क्या लिखना होता है? Topic is, question is asking about the main feature. So can you tell me, Arpit, what are the main features of this graph? मेन फीचर क्या होंगे इस ग्राफ के? अगर हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो इसके मेन फीचर क्या इसमें मेजर है जो हमें दिख रहा है? इसका लीस्ट और हाईएस्ट बता सकते हैं. That's good, right. So whenever like is asked about the main features, so you have to mention the highest or the lowest value, the maximum, the minimum. जैसे यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग कब पहुंचे थे? सुबह 8 बजे, और यहाँ पर भी लगभग मतलब in the evening at 6 o'clock the maximum number arrived. बट सबसे कम लोग कब पहुंचे थे टोरंटो के स्टेशन पर? सो एट 6 AM इन द मॉर्निंग एज वेल एज एट 4 PM इन द इवनिंग. तो ये हमने बताना है द क्रेस्ट एंड द ड्रॉप्स, द मैक्सिमम एंड द मिनिमम, राइट, हम ये बताएंगे. तो हम लिखेंगे इन एन ओवरव्यू. हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमेशा कनेक्टर से. इन एन ओवरव्यू, या इसकी जगह आप लिख सकते हो ओवरऑल. इन एन ओवरव्यू द लीस्ट. सो व्हाट वी आर यूजिंग इज, हम लीस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, राइट, बैड, वर्स, वर्स्ट. तो यहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्रीज यूज करेंगे हमेशा. द, मैक्सिमम. तो जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं हमें द आर्टिकल भी यूज करना होता है उसके साथ. सो इन एन ओवरव्यू हमें क्या लिख रहे हैं? द लीस्ट अमाउंट ऑफ एक्टिविटी. क्योंकि ये पास्ट टेंस है, 2007 की बात है, तो हम लिखेंगे was recorded. So this is a passive voice of past tense. The least amount of activity, सबसे कम एक्टिविटी जो रिकॉर्ड की गई थी वो थी सुबह 6 बजे. सो राइट, अर्ली मॉर्निंग आवर्स. इंस्टेड ऑफ 6 AM हमने लिख दिया अर्ली मॉर्निंग आवर्स. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने जब ओवरव्यू लिखना है, यू कांट राइट वैल्यूज. आप किसी भी किस्म की मैथमेटिकल वैल्यू नहीं लिख सकते ना. आप ये बता सकते हो 10 बजे, 11 बजे, राइट, 100,000, 200,000. क्यों नहीं हम बता सकते? क्योंकि वो वैल्यूज आपको इन डिटेल डिस्कस करनी है बॉडी पैराग्राफ्स में, इसके नेक्स्ट वाले पैराग्राफ्स में. तो अगर आप ओवरव्यू में वही चीज बता दोगे, BP1 BP2 में भी वही चीज बता दोगे, सो व्हाट विल बी द डिफरेंस, राइट? टू अवॉइड रेपिटेशन
You can't write any values in overview. तो इसीलिए हम इसको इस तरीके से लिखते हैं. In an overview, the least amount of activity was recorded at very early morning hours and in the late afternoon time period. However is a connector when you will be using the opposite, showing the opposite trend. तो यहाँ पर opposite trend क्या है? सबसे कम the least. अब सबसे ज्यादा लोग कब पहुंचे थे? सुबह 8 बजे, पर हमने 8 AM नहीं लिखना, तो हम कैसे लिखेंगे? However, the most of the activity was recorded at the normal morning hours at the station. Normal morning hours हमने इसलिए लिखे क्योंकि किसी भी कंट्री के, किसी भी सिटी के ऑफिस आवर्स टाइम यही होता है 8 to 5, 9 to 6. यहाँ आप ये भी लिख सकते हो इन द रश आवर्स, इन द पीक आवर्स, इन द ट्रैफिक आवर्स. सबसे ज्यादा ट्रैफिक जब सुबह 8 बजे और शाम के 6 बजे थी. तो इन दिस वे हमने मेन फीचर explain कर दिए of this graph without explaining the value, right? So the introduction as well as overview of this graph is complete, but still 2 paragraphs are pending, body paragraphs, in which you will be discussing the values, how you have to make sentences, what type of vocabulary words you have to use, कैसे आपको adjective adverb use करने हैं, कैसे आप sentence बनाओगे. That will be discussed in detail in the orientation class, right? Do you have any doubt? Any one of you? No, ma'am. No. That's good. So I am proceeding to next module, next task, that is essay writing. तो आपको एक essay लिखना है. Obviously ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको कोरोना वायरस के ऊपर essay आ जाए. So there are fixed topics. The essays will be asked on the topics like globalization, industrial revolution, global warming, and so on. Right? You need to write 250 words. एंड 40 मिनट्स में अपने एसे कंप्लीट करना है. तो मोस्टली स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हमारे पास आइडियाज नहीं होते, राइट? वी डू नॉट हैव आइडियाज व्हाट टू राइट इन एसेस. सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, व्हाट वी हैव डन इज, हमारे पास एक आइडिया डेवलपमेंट पीडीएफ है, राइट, जो कि आप यूज कर सकते हो. उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज हैं रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, एडवर्टीजमेंट, वही टॉपिक जो जिनके ऊपर एसे डालते हैं वो, right? तो उन टॉपिक्स पर we have very good vocabulary words, good sentence structure that you people can also implement in your essays. ठीक है? तो अब ऐसे लिखना कैसे है? ऐसे जो है आपको 4 पैराग्राफ्स बनाकर लिखना है. फर्स्ट पैराग्राफ इज इंट्रोडक्शन, सेकंड इज बॉडी पैराग्राफ 1, third is body paragraph 2, and fourth is conclusion. So here the main difference is that you will be writing conclusion at the end, right? But in report writing you were writing overview after introduction. So this is the difference. कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ओवरव्यू बाद में ही लिखते हैं, एंड में लिखते हैं. दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट. आपको ओवरव्यू इंट्रोडक्शन के बाद ही लिखना है, बिकॉज वो आप रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हो और ये एसे है, तो इसका कंक्लूजन एंड में ही आएगा. सो इंट्रोडक्शन में व्हाट यू शुड इंक्लूड, इंट्रोडक्शन मस्ट हैव 3 स्टेटमेंट्स: जनरलाइज स्टेटमेंट, पैराफ्रेजिंग ऑफ द क्वेश्चन स्टेटमेंट, एंड थीसिस. So paraphrasing as we did in task 1. Thesis, I'll tell you what exactly thesis is. जैसे ये topic है हमारे essay का. Nowadays, some parents pressurize their children to be successful in a specific field. What are the reasons for this? Is this a positive or negative development? So Kanwar, can you tell me what is the meaning of this question? Can you let me know? Yes, the question is asking that whether we are in favor of this practice or not in favor of this practice. Okay, so yes, the question is, आजकल बहुत सारे कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं ताकि वो किसी एक ही फील्ड में सक्सेसफुल हो सके. So there are 2 questions which are asked from you, like what are the reasons for this, why parents put pressure on their children, और दूसरा आपको ये बताना है is it a positive or a negative development. So अर्पित, can you tell me कि आप पॉजिटिव लिखोगे या नेगेटिव लिखोगे या दोनों साइड आंसर लिखोगे इसका? हम दोनों साइड ही लिखेंगे. क्या BP1 में पॉजिटिव और BP2 में नेगेटिव लिख सकते हैं. Okay, so what about reasons? So this is the reasons. What are the reasons? Okay. So right, it's very important to plan the structure
एन एसे फर्स्ट, लाइक मोस्टली स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट नहीं क्लियर होता कि जब क्वेश्चन में और है, whenever there is or in a question statement, you have to choose one side. दोनों साइड आंसर नहीं लिख सकते. ओके राइट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी के घर जा रही हूँ तो वो लाइक हम जाते हैं किसी के घर तो वो हमें ऑफर करते हैं, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी और टी, तो हम ऑब्वियसली कोई वन चूज करते हैं ना. हम तो ये तो नहीं बोलते कि आप कॉफी भी ले आओ और चाय भी ले आओ, हम दोनों पी लेंगे. राइट. सो द थिंग इज दिस, हियर यू हैव टू चूज वन साइड. इट विल ऑलवेज बी अ वन साइडेड ऐसे. वो आपको पहले प्लान करना है स्ट्रक्चर कि आप पॉजिटिव साइड लिखना चाहते हो या फिर आपके पास ज्यादा पॉइंट्स नेगेटिव साइड को एक्सप्लेन करने के हैं तो आप नेगेटिव लिखोगे. कौन से अच्छे वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आपके पास. सो यू विल प्लान द स्ट्रक्चर इन द इनिशियल मिनट्स. तो जब आप प्लानिंग करने के बाद कैसे लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पॉइंट है जर्नल स्टेटमेंट. जर्नल का मतलब कोई भी न्यूट्रल लाइन. राइट. So just say, because the topic was about parents and children, so you can write any journal statement. Nurturing the children is one of the most significant responsibilities of parents. बच्चों की परवरिश करना एक अहम जिम्मेवारी है पेरेंट्स की, और वो अलग अलग तरीकों से इस प्रोसेस को करते हैं. Nowadays, so now we are paraphrasing, क्वेश्चन को ही रिपीट करके लिख रहे हैं. Nowadays की जगह these days, some parents की जगह आप लिख सकते हो numerous parents. प्रेशराइज की जगह यू कैन राइट इम्पोज एंड अनड्यू बर्डन. इम्पोज का मतलब होता है थोपना, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं. राइट. इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन ऑल्सो राइट पेस्टर, फोर्स, कंपेल देयर वर्ड्स. इंस्टेड ऑफ चिल्ड्रन यू कैन ऑल्सो राइट ऑफस्प्रिंग, वर्ड्स. तो काफी सारे वर्ड्स हैं. एज दे वांट देम टू सक्सीड इन लाइफ फॉलोइंग अ पर्टिकुलर पाथ. तो हमने क्वेश्चन को ही रिपीट करके लिख दिया, स्पेसिफिक फील्ड की जगह लिख दिया पर्टिकुलर पाथ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है पैराफ्रेजिंग करना. सो नेक्स्ट इज थीसिस. थीसिस का मतलब है जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, चाहे वो एक क्वेश्चन है चाहे वो दो है, यू मस्ट गिव द ब्रीफ आंसर्स ऑफ दोस क्वेश्चन इन द इंट्रोडक्शन. उसका आपने ब्रीफ में छोटा मतलब स्मॉल आंसर देना है यहाँ पर. तो हाउ यू कैन राइट, क्यों पेरेंट्स, like it's the mentality of the mostly Indian parents that they want their children to become either doctors or engineers. Right. Mostly Indian parents यही सोचते हैं ना कि उनका बच्चा इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, क्योंकि ये दोनों अच्छे प्रोफेशन है, इनसे इनकम ज्यादा आती है और राइट स्टैंडर्ड है, इनका स्टेटस सिंबल है. सो ये मेंटालिटी है. राइट. तो आप क्या लिखोगे, क्योंकि कुछ पेरेंट्स की जो सोच है वो ऑर्थोडॉक्स हो गई है, फिक्स्ड हो गई है, मतलब नैरो माइंडेडनेस हो गई है. उनको बाकी प्रोफेशन पता ही नहीं लगते कि उनकी भी इंपॉर्टेंस है. राइट. सो यू कैन राइट दिस थिंग इन थीसिस, like orthodox thinking of the parents need to be blamed for this reason, for this right trend. However, फिर आप इसका आंसर दोगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. So however, I think this have unfavorable effects on children's future. मुझे ये लगता है इसके बहुत बुरे प्रभाव पड़ेंगे बच्चे के फ्यूचर के ऊपर. तो इसका मतलब आपने चूज कर लिया कि ये नेगेटिव है. ठीक है. तो अब आप बॉडी पैराग्राफ 1 में ये बताओगे कि क्या रीजन है. एक तो हम वही रीजन एक्सप्लेन करेंगे, उसको जस्टिफाई करेंगे कि ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग कैसे है, लाइक और क्या रीजन हो सकता है कि बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन ऑफ द सोसाइटी. इन दिस सोसाइटी देयर इज अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इन ईच एंड एवरी फील्ड. ठीक है. इसीलिए पेरेंट्स अपने बच्चों को फोर्स करते हैं, प्रेशर करते हैं उनको फ्रॉम देयर फॉर्मेटिव ईयर्स, उनके बचपन से ही. राइट. तुमने एकेडमिक में भी अच्छे होना है, तुमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी एक्सेल करना है, मतलब सक्सेसफुल होना है. तो दिस कैन ऑल्सो बी द रीजन. आप बीपी 1 में, बॉडी पैराग्राफ 1 में कम से कम 2 रीजन एक्सप्लेन करोगे क्यों पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रेशर करते हैं. इन बॉडी पैराग्राफ 2 अब आप ये एक्सप्लेन करोगे कि ये नेगेटिव कैसे है, हाउ इट इज नेगेटिव, व्हाई इट इज नेगेटिव, बिकॉज यू हैव चोजन दैट दिस इज अ नेगेटिव डेवलपमेंट. राइट. फिर आप एक्सप्लेन करोगे. तो कैसे लिख सकते हो, यू कैन राइट there are many reasons, there are myriad of reasons why I consider it to be negative. First and foremost is that it can have detrimental effects on the child's physical and mental health. कि बच्चे की दिमागी और उसकी फिजिकल हेल्थ पर इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा. जैसे 3 Idiots मूवी में दिखाया ना कि 3 दोस्त होते हैं, they never ever want to become or they never ever interested in becoming an engineer, but because of their parents pressure they were admitted into the university. ठीक है. तो out of those 3, one even wants to commit suicide. Right.
तो उसमें यही दिखाया गया कि अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशर किया जाए, उनके ऊपर फोर्स डाला जाए, राइट, सो द चाइल्ड में अंडरगो डिप्रेशन, द चाइल्ड में इवन बिकम इंट्रोवर्ट. इंट्रोवर्ट इज अ वोकैबुलरी वर्ड. इंट्रोवर्ट का मतलब होता है चुप चुप रहने लगेगा, वो किसी से बात नहीं करेगा. और द चाइल्ड में इवन ट्राई टू एंड अप हिज और हर लाइफ बाय कमिटिंग सुसाइड. हो सकता है अपनी लाइफ वो खत्म करना चाहे बिकॉज ऑफ द प्रेशर. So this is a negative thing. Second reason that you can explain in body paragraph 2, this is again negative, because if the child wants to learn about musical instrument, wants to participate in sports, but because of the parents' pressure, the child is forced to give up his or her favorite activities. बच्चे की फेवरेट जो थी वो उसको छोड़नी पड़ी, स्पोर्ट्स को छोड़ना पड़ा या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को छोड़ना पड़ा. उसका इंटरेस्ट था म्यूजिक सीखने में, वो म्यूजिशियन बनना चाहता था या सिंगर बनना चाहता था, तो उसके जो हिडन टैलेंट है, उसके अंदर जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट था वो बाहर नहीं आ पाएगा. सो द हिडन टैलेंट विल रिमेन hindered, the creativity will be hindered, right? Hindered is again a good vocabulary word. So again it will be a negative development, not only for the child but also for the society. Society को सिर्फ डॉक्टर्स इंजीनियर्स नहीं चाहिए, सोसाइटी को तो फोटोग्राफर्स, डांसर्स, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है. तो ये आपने एक्सप्लेन कर दिया बॉडी पैराग्राफ 2 में कि ये नेगेटिव कैसे है. फिर कंक्लूजन में आपने क्या लिखना है, जैसे किसी स्टोरी का मॉरल होता है, राइट, सारांश. तो यहाँ पर भी ऐसे का कंक्लूजन है that you must write in 3 sentences only, not more than that. Conclusion should never ever have a new point. इसमें कभी कोई नया point नहीं लिखना. It should be only of 3 sentences. Never exaggerate the conclusion. It should have the sum up ideas of both body paragraph 1 and 2. जो आपने BP1 BP2 में लिखा है वही conclusion में लिखोगे, राइट, या जो थीसिस में लिखा है वही conclusion में लिखोगे. जैसे कि यहाँ पर क्या लिख सकते हो, you always have to start conclusion with the conclusion marker. Marker कौन सा, जैसे कि to conclude, in conclusion, right, to recapitulate. So there are many different markers, connectors that we will provide you in a list of connectors. तो आप लिख सकते हो to conclude, although some parents put pressure on their children because of the competition in the society or their orthodox thinking, however, I completely believe that this is a negative development as it can have detrimental effects on the child's physical and mental health. That's it. आपने वही पॉइंट बताया कि बेशक अपने पेरेंट्स बच्चों को फोर्स करते हैं कंपटीशन की वजह से या उनकी सोच की वजह से, बट फिर भी ये क्या है, बहुत बुरा है बच्चों की लाइफ के लिए. उनकी फिजिकल मेंटल हेल्थ विल बी completely deteriorated. It will be, right, detrimental for it. Right, in this way the essay is complete. So this was only one type of essay that we have discussed in the class, but yes, we will discuss other types of essays also one by one. उनका स्ट्रक्चर कैसे लिखना है, उनका क्या गुड सेंटेंसेस स्ट्रक्चर है जो आप यूज कर सकते हो, व्हाट आर द गुड वोकैबुलरी वर्ड्स, कितने कनेक्टर्स आप यूज करोगे, राइट. सो एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल. कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं, अगर आपने 7+ बैंड्स या 8+ बैंड्स लेने हैं राइटिंग में, so what are the good sentence structure that you have to follow? So these things will be discussed in the orientation class. Is there any doubt, Arpit, Kanwar? No, ma'am. So, okay, that's good. So next I am moving to last module, that is speaking. Speaking जो है वो 10-15 मिनट का एग्जाम है, ज़्यादा नहीं है. It's a face-to-face interview between the test taker and the examiner. Here you have to speak and it will be on another day, some another day. And let's see what will be the type of questions. जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे introductory part में. So here also the examiner may ask you the questions related to your like life, like are you working or a student? Describe your family. Can you tell me why do you want to go abroad? What are your hobbies? Right? Where do you live? Where are you from? तो ऐसे करके questions पूछेंगे जिसने like you here you have to speak 1 to 2 sentences per answer. Never ever give one word answer. Yes or no में answer नहीं देना, right? It's very important to explain the answers in 1 to 2 sentences. Next section 2 होता है cue card. Cue card is the main part of the speaking where you have to speak for at least 2 minutes. You will be getting 1 minute to prepare. 1 minute दिया जाएगा
preparation time, then speaking time है 2 minutes. So here the examiner may ask you further questions in the follow-up question, in the follow-up section. तो follow-up में examiner आपसे हो सकता है discussion, like it is basically a discussion part. So हो सकता है examiner आपसे right argument करे, like why do you think like this, why do you right believe this. तो ऐसे करके questions पूछ सकते हैं जिसका आपने 5 to 6 sentences पर आंसर आपने आंसर देना है. इसमें ज़्यादा बोलना पड़ेगा आपको. It is very appropriate if you will be using examples, because if you will be giving satisfactory answer to the examiner, so only then right you will get good bands. Right, moving on to cue card. तो cue card का कैसा होता है? Like here the question is, describe a crowded place that you have visited. So the questions are where it is, when you visited this place, why you visited it, and explain how you felt about visiting this crowded place. तो कोई ऐसी भीड़ वाली जगह बताओ जहाँ पर आप गए हो, जा चुके हो, कहाँ पर है वो जगह, कब गए थे, क्यों गए थे और कैसा लगा वहाँ पर जाकर. सो यहाँ पर क्या है, क्यू कार्ड में यू जस्ट हैव टू क्रिएट अ स्टोरी, क्राफ्ट अ स्टोरी. एक स्टोरी सुनानी है 2 मिनट की, चाहे वो सच हो झूठ हो, नथिंग मैटर्स, बट ऑल मैटर्स इज दैट यू हैव टू स्पीक इन अ गुड, right, in a good fluency. You must have good pronunciation, good grammar, as well as vocabulary words must be used. तो इसके लिए हम yes please. Yes Sarpit. मैम जी ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ मीनिंग समझना है कि उन्होंने की पूछा है फिर. Okay, so cue card ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ. So what you can do is ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ rephrase, you can ask, could you please paraphrase this question. ਤੁਸੀਂ rephrase ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ. Paraphrasing, okay. Definitely they will change the meaning, they will change the words that they will be asking in the question, right? Okay. So you can request them. So it's quite simple. Describe a crowded place. Crowded place मतलब कोई भीड़ वाली जगह. So I think there is no any difficulty in understanding this thing. So, नहीं ये तो समझ आ गया था, वैसे मैं पूछ रहा था कि अगर क्यू कार्ड के ऐसे कोई आउट ऑफ द टॉपिक कोई क्यू कार्ड नहीं आएगा आपको. सो वो मैं वही बताने जा रही थी दैट वी विल प्रोवाइड यू द लिस्ट ऑफ क्यू कार्ड्स. हम आपको क्यू कार्ड्स की एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, एक बुकलेट प्रोवाइड करेंगे जिसमें कि नियर अबाउट 50, 55 या 70 तक क्यू कार्ड्स हैं. एंड इट्स फॉर श्योर कि एग्जाम में उन्हीं में से आएगा एक, राइट. आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं वो पूछेंगे. सो देर आर उनकी स्टेटमेंट मॉडिफाई हो सकती है, जैसे कि डिस्क्राइब अ पर्सन who is very close to you in your family, right? ये क्यू कार्ड है. तो इसमें आप बोल सकते हो कि मेरे फादर या मेरे मदर, मेरे ब्रदर, मेरे सिस्टर मेरे बहुत क्लोज हैं. या अगर मैं इसी क्यू कार्ड की मॉडिफिकेशन कर दूं, डिस्क्राइब अ पर्सन विद whom you spend most of the time in your family. कोई ऐसा पर्सन बताओ जिनके साथ आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो अपनी फैमिली में. तो तब भी आप बता सकते हो कि मेरे फादर के साथ मैं सारा दिन रहता हूँ, मदर के साथ रहता हूँ, राइट. सो कंटेंट विल बी सेम. क्यू कार्ड की स्टोरी सेम रहेगी, टॉपिक चाहे वो कुछ भी बोल ले, तो आपको स्टोरी क्रिएट करनी आनी चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ गुड स्टोरी, राइट, इंटरेस्टिंग स्टोरी, सो दैट आप एग्जामिनर को सुना सको अच्छे से, जिसमें अच्छे वोकैबुलरी वर्ड हो. तो जैसे यहाँ पर क्या है, आपके पास ऑप्शन है, यू कैन टॉक अबाउट एनी मॉल, एनी रिलीजियस प्लेस, एनी राइट पार्क, गार्डन, या फिर आप ये भी बता सकते हो कि मैं किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में गया था घूमने के लिए, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन गया था, वो बहुत भीड़ वाला था, क्राउडेड था, क्यों क्राउडेड था, क्या था उस दिन स्पेशल, किसी मॉल में गए थे, क्यों क्राउडेड था, क्योंकि किसी सिंगर ने परफॉर्म करने आना था, इसका कंसर्ट था. तो ऐसे करके यू कैन क्रिएट अ स्टोरी. बट यस, बिकॉज मोस्टली क्यू कार्ड्स आर आस्क्ड इन पास्ट टेंस, तो यहाँ पर आप पास्ट टेंस के सेंटेंसेस यूज करोगे. ये नहीं है कि सिर्फ पास्ट में ही बोलोगे, राइट. यू कैन यूज प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, राइट ऑल्सो. जैसे यहाँ पर अगर मैं एक स्टोरी क्रिएट करूँ, एक इसका सैम्पल आंसर आई विल ट्राई टू गिव टू यू. जैसे कि आप स्टार्ट कर सकते हो, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री एंड देयर आर and its population is increasing day by day. So there are so many crowded places that can be witnessed in my nation. For example, Delhi, Mumbai, Kolkata, these are the crowded places. But here I would like to talk about one such crowded place that I witnessed, or that I have seen a couple of months ago, that I visited a couple of months ago, and it is none other than the very famous religious place, the Golden Temple.
So it is situated in the hub of city Amritsar. Apart from that, it is a tourist attractive place as well. So I vividly remember when I visited this place, it was the month of April. It was the Vaisakhi event, which is a very famous festival of the Sikh community, and they celebrated with huge pomp and show. So when I visited this place, I got surprised to see that there were thousands of people who were standing in a long queue. There were many foreigners as well, tourists as well. So even I have to stand in a long queue to enter into the main hall. I stood for around 2 to 3 hours. But when I entered the main hall, I got mesmerized, astonished to see the beauty of that place because everything was in golden color. So then I paid obeisance in front of God, in front of Almighty. Then I had the circumambulation of Holy Book. But when I came out of that main hall, I felt really wonderful because it was a satisfactory feeling that I was having after visiting this crowded place. Although it was really crowded, yet I felt very satisfied. So, all in all, I can say that this was the crowded place that I visited recently. राइट तो कई जो स्टूडेंट्स हैं वो इसका आंसर जो है नेगेटिव में देंगे, कई जो है आप पॉजिटिव में भी दे सकते हो कि मैं गोल्डन टेम्पल जाकर आया हूँ, वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी पर स्टिल मुझे बहुत अच्छा लगा वहां पर जाकर. सो यहाँ पर मैंने कैसे कैसे वोकैबुलरी वर्ड्स यूज किए हैं. ओबेसेंस, राइट. देन आई यूज्ड सर्कमएम्बुलेशन. सर्कमएम्बुलेशन का मतलब होता है परिक्रमा करनी. ओबेसेंस का मतलब होता है किसी के आगे हेड बो करना, माथा टेकना, सर झुकाना. ऑलमाइटी, ऑलमाइटी मतलब परमात्मा, राइट. ऐसे ही देन आई हैड सेटिस्फाइड और मेस्मराइज्ड. मेस्मराइज का मतलब होता है सरप्राइज हो जाना किसी चीज को देखकर, कोई अच्छी चीज को देखकर, ब्यूटीफुल, राइट. बिल्डिंग, लैंडस्केप. सो हब, हब का मतलब है हब ऑफ सिटी अमृतसर. हब का मतलब होता है सेंटर, कि ये अमृतसर के सेंटर में लोकेटेड है ये बिल्डिंग. सो पिलग्रिम या रिलीजियस प्लेस. रिलीजियस प्लेस का मतलब होता है धार्मिक प्लेस, राइट. पिलग्रिम वर्ड भी यूज कर सकते हो. सो वी विल प्रोवाइड यू द डिफरेंट वोकैबुलरी वर्ड्स, गुड सेंटेंस स्ट्रक्चर. हम आपको ईडियम्स भी प्रोवाइड करेंगे जो आप क्यू कार्ड में यूज कर सकते हो, राइट. डेली 1-to-1 स्पीकिंग सेशंस होंगे हमारे ट्रेनर्स के साथ. एटलीस्ट 15-20 मिनट्स का सेशन होगा, तो आपको पता चलेगा कि हाउ टू रिमूव हेजिटेशन इन स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है. So this was all about the session. So guys, the session is over. So if you have any questions related to any module, please ask me. कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है किसी मॉड्यूल में, कुछ नहीं समझ आया, पूछ लो. No doubt. Everything is clear? Yes, sir. Yes, ma'am. Okay, so I hope you had a great session, right? And it was really an interactive one. I liked the way you asked questions to me, you give responses. It was really good. So Arpit and Cover, I hope you will join the session very soon, right? Yes, sir. Yes, ma'am. So please let us know. Our counselor will be calling you within 1 hour or within half an hour. Please attend her call and do let us know from when you want to join the class. कब से join करनी है. अगर आपके कुछ doubts हैं related to the class strength, the fee structure and all, you can have a word with counselor, right? Okay. Okay, so I'm looking forward to see you in the class. Okay, thank you. Right? Okay, bye guys. Have a nice day.